میں سب سے پہلے غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی مجھ میں آپ لوگ اچھائیاں پاتے ہیں وہ ساری میں نے مکھیا صاحب کے پیروں تلے سے اٹھائی ہے۔ میں نے زندگی بھر ایسا ٹیچر نہیں دیکھا ہے۔ تو جب فاطمی صاحب نے مجھے کہا کہ صاحب یہ غالب میموریل لیکچر ہوگا، مجھے تو اپنی خامیاں معلوم تھی، لیکن مجھے غالب کا وہ شعر یاد آیا جہاں انہوں نے لکھا ہے، ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ شعر مجھے یاد آیا تو اس کے ساتھ ہم نے فاطمی صاحب کی بات پر عمل کی اور کچھ خیالات ہم نے غالب کے بارے میں قلم بند کیے جو میں ساتھ لایا ہوں لکھ کے۔ ہم تو پہلے سوچے کہ غالب اور 19th سینچری پہ بات ہو، لیکن غالب کو پڑھتے پڑھتے جب میں ایک دن لائبریری میں گیا اور وہاں سے میں نے نقوش کی کاپی اٹھائی، نقوش کی کاپی میں میں نے اتنے پرانے غالب پہ اتنے اچھے مضمون دیکھے کہ مجھے لگا کہ غالب سمجھا ہی نہیں گیا ہے، اور غالب سمپلی ایک شاعر نہیں ہے، غالب ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے اپنے کے اندر۔ غالب ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ جب ہم 19th سینچری کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگا ہم جب 20th سینچری کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی آزادی 19th اور 20th سینچری کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی بڑا تھیم بنتا ہے جو پورا ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اگر اس میں ہم اقبال کو اس ڈھانچے میں ڈالتے ہیں 20ویں صدی کو لے کے تو ہم دیکھتے ہیں تو ہم اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن غالب کی حیثیت الگ ہے۔ ہم دیکھیں کہ غالب جو ہے، غالب خالی 19ویں صدی کے دائرے میں نہیں، لیکن غالب ایک ٹرانزیشن کی بات بھی کرتا ہے۔ غالب ہمیں صدیوں پیچھے بھی لے جاتا ہے، اور لیکن صدیوں آگے کے لیے بھی کچھ باتیں ایسے کی ہے غالب نے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو ان نقوش کے ایسیز کو دیکھ کر اور کچھ کتابیں پڑھ کر، جناب علی احمد فاطمی صاحب کی غالب اور الہ آباد پڑھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ غالب کو نئے سرے سے ٹٹولنا ہوگا، نئے سرے سے دیکھنا ہوگا، نئے سرے سے اسٹڈی کرنا ہوگا۔ غالب کی شاعری کے کئی سیاسی اور معاشی مطالبے سامنے آئے ہیں۔ بعض مطالبے ایسے بھی ہیں جن میں شاعر کے کلام کے سیاق و سباق کا خیال نہیں رکھا گیا اور مطلوبہ نتائج اخذ کر لیے گئے ہیں۔ غالب کے کلام میں ایسے اشعار ہیں جو کسی بھی آشوبناک صورتحال پر نہیں ہیں۔ یہ صورتحال اس لیے اور بھی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ کلام غالب کا ایک بھی مطالعہ ایسا نہیں ہے جس میں ہر غزل یا فن پارہ کا سال تصنیف ذہن میں رکھا گیا ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کلام مختلف اوراد میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ ایک لحاظ سے قدر غنیمت ہے، لیکن اسے مثالی صورت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ غالب شاعر کی ایک روبہ زوال معاشرے کی مثال سازی کا مرقع ہے۔ یہ ایک ایسا مشاعرہ ہے جس میں غالب کے دادا باپ چاچا نے فن سپاہ گری کے بطور پیشہ اپنایا تھا اور اپنی خدمات مرکزی اور مرکز گریز طاقتوں کے حوالے کی تھی۔ 1857 کے واقعات کے کئی پہلو دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بابائے اردو جیسے محقق سے لے کر بعض جدید نقادوں نے بھی اس نوع مفروضات پر عمل کیا ہے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ آپ غالب کے تصنیف پر نظر ڈالیں۔ بعض غالب 1816 نسخہ حمیدیہ، 1821 نسخہ شیرانی، 1862 نسخہ رامپور، 1833 گلرانہ، 1832 اور مین دیوان۔ یہ گمان ضرور گزرتا ہے کہ غالب مابعد
गैर रियाया समाजी उथल पुथल की तमशाले तहकीक कर रहे हैं। बस इस फ़र्क के साथ वो अपने बचपन में शाह आलम को शाह आलम की हैसियत से देख चुके थे। इनको मौलिद आगरा में शाह आलम का वजूद न होने के बराबर था और दिल्ली में 1803 के बाद अंग्रेज़ बरसर इक़्तिदार आ चुके थे। इलाका दिल्ली का जुमला इंतज़ाम अंग्रेज़ों के ही हाथ था और बादशाह महज अलामती हैसियत इख्तियार कर चुका था। 1806 में शाह आलम का इंतकाल हुआ और ज़िम्माम इक़्तिदार अकबर सानी के हाथ में आई। इस बादशाह के साहिबजादे अबुल ज़फ़र 1817 में दिल्ली के तख्त पर मुतमईन हुए। गालिब ने अकबर सानी के बेबसी का आलम देखा। वो अपने हल्के अहबाब में एक ऐसे दानिश्वर की हैसियत से जाने जाते थे जिसके लिए मुगलिया इक़्तिदार 1761 में ही ख़त्म हो चुका था, जब अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाही 1739 की खूने याद मान कर थी। गालिब ने कहा, इबादत बर्ग की करता हूँ और अफसूस हासिल का, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत यारी हाय हाय, तेरे दिल में गर न था आशोबे गम का हौसला, तूने फिर की थी मेरी गम गुसारी हाय हाय। और ये सिर्फ इसलिए कहा कि गालिब के लिए बरसगीर में मुस्लिम इक़्तिदार का तमाशा ख़त्म हो चुका था। गालिब का बचपन काफ़ी खुशहाली में गुजरा था, लेकिन वो 19वीं सदी की दूसरी दिहाई के अहद में बड़ी हद तक बेनियाज हो गए थे। इसने अपने चाचा की वारिस की हैसियत से नवाब अहमद बख्श खां को तफवीज़ कर वो शिक्का के मुताबिक अपना हिस्सा हासिल करने के लिए जद्दोजहद की और कलकत्ता के सफ़र में सोबतें उठाई। वो हमारी अदबी तारीख़ का बहुत तकलीफ दह हिस्सा है। नवाब अहमद बख्श की तरफ से एक हकीकत का मतलब ये है कि गालिब बिल्कुल ही क्लाश कर रहे थे। 1806 से गालिब इस शिक्का की रूह से हासिल होने वाली आमदनी से महरूम रहे। ये सूरत हाल तकरीब 25 साल तक जारी रही। इंसानी रिश्तों के बारे में गालिब गैर यकीनियत का शिकार होकर रह गए। जब करीबी रिश्तेदार भी ओहद-ओ-पैमा से फिरने लगे तो फिर एहसास फ़न का मिसाल इंसान की जुस्तजू में गिरफ़्तार हो जाता है। इसकी कज कल्बी में कमी आने के बजाय कुछ मज़ीद इजाफ़ा भी हो जाता है। गालिब एक ऐसा रईस ज़ादा शायर है जो सिर्फ़ अपनी यादों के माही मुरातिब पर बुरी तरह मुतमईन नहीं, बल्कि इसके यहाँ नस्ली तका खैर और दुनियावी जहव जलाल के सिलसिले में एक अनाई मखलूस, जिसको इन्वर्टेड ईगो कहते हैं, की कैफियत मिलती है। वो बैक वक्त हकीकत पसंद और इल्तिबास नसीब है और इन दो हालतों की यकजहत की वजह से उर्दू शायरी की ऐसी अजीब व गरीब सेजदज मिल गई है जो गालिब के अलावा किसी और शायर के यहाँ नज़र नहीं आती। आप दूसरे रुख की तरफ जहाँ देखिए, जहाँ गालिब वाज़े तौर पर एक रद्द अमल देते हुए मिलते हैं। यहाँ शायरी ज़बान और रिवायत का ऐसा तसलसल नज़र आता है जिसमें फ़र्द की दाखिलियत के साथ आमेज़ होकर इज्तिमाही नवाह के करीब आ जाता है। गालिब की अज़मत ही ये है कि अलमिया बस औक़ात मुहसिक खुद ख्वाल इख्तियार कर लेता है और गरिए के साथ खंदा का तज़ाद दामन गिर हो जाता है। अगर ये कहा जाए कि गालिब के ख़ानदानी हालात ऐसे थे कि जंगजुओं का ख़ानदान था तो ज़्यादा गलत न होगा। इस ख़ानदान के लिए पाया ताकत और सोबों के माबैन रस्सकशी मुनासिब रोज़गार के फ़र्ज़ों से मुवाफ़िक से इबादत थी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुहिम जवाफ़राद बरसगीर आ पहुँचे थे और वो सिखों, जाटों, अवधी हुक्मरानों, निज़ाम हैदर अली, टीपू सुल्तान और मराठों के लश्करों में मसरूफ़ कार थे। गालिब की वालिद भी अलवर के जाट महाराजे की खदमत गुजारी के दौरान हलाक हुए थे। ये अजीब इत्तेफाक है कि गालिब के अलावा की कई दूसरे शायर के सर बुरहान के ख़ानदान भी इस नवियत के पेशे मुतलिक थे।
खुशहाल खान खटक के साथ भी मामला यही था। पहले वो अपने बुजुर्गान खानदान की तरह जागीर के अवज़ मुग़ल बादशाहों के लिए जंगें लड़ते रहे। कांगड़ा के राजा जगत सिंह के खिलाफ खुशहाल खान की जंग मुग़ल सल्तनत की हिफाजत के लिए थी, और बाद में मुग़लों की बद मालिगी के बाहिस खुशहाल खान खटक मुग़लों के खिलाफ सफारा हो गए। गाली अपनी ज़िंदगी बहर हवादिस में तैरते गुजरी। वो कौन सा उजुबा है जो इसने न देखा हो, ज़वाल की वो कौन सी सूरत थी जो इसने न देखी। गालिब फरमाते हैं, दीवानगी से होश पर जुन्नार भी नहीं, यानी हमारी जेब पे एक तार भी नहीं। दिल को नियाज़े हसरत दीदार कर चुके, देखा तो हमसे ताकत दीदार भी नहीं। एक तरफ मुग़ल आज़म और इससे पहले वस्त एशिया के मुग़लों के जाहो जलाल की यादें थी, और एक तरफ ये आलम के लाल किला में बूढ़े बादशाह के मुलाकाती अंग्रेज़ अफसरान अपने पास खैरात के लिए कुछ रुपए रख लेते कि मुबाद खास्ता हाल शहजादों के गिरोह इन पर टूट पड़े। मिसेस मीर अली हसन गालिबन वो पहली अंग्रेज़ खातून हैं जिनकी लाल किले के ज़नाना तक रसाई हुई। वो तैमीरी शहजादों और शहजादियों की खस्ता हाली का जिक्र करती हैं। गालिबन सादा लोह अफराद में से न थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के इब्तदाई चंद माह हुर्रियत पसंदों की आर्जी फतूहात से ये खुश कुन नतीजा अखज़ कर लिया था कि अंग्रेज़ साम्राज्य चंद दिनों का मेहमान था। गालिब अंग्रेज़ी हुक्मरानों की सन्नती तरक्की पर हैरान व शशदर रहे। जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, सनत दूर के दूसरे मुजाहिर अंग्रेज़ों की कामयाबी के ज़ामिन थे, जबकि जंग आज़ादी की मुजाहिदीन पूरी तरह मुत्हिद और मुंज़िम भी थे। वो ज़वाल आमादा जागीरदारी ओहद के पसमानदा हथियारों से भी पूरी तरह लेस न थे। गालिब जानते थे कि अंग्रेज़ अमलदारी कलकत्ते से पेशावर तक फैली हुई और अपनी अराज़ी मुश्किलातों पर काबू पाने वाले के मशरिक, मगरिब और जुनूब की सिमतों से दिल्ली की जानिब बढ़ रहे थे। यही सबब है कि गालिब अपने कलाम में ईस्ट इंडिया कंपनी की अहमियत के बारे में भी हकीकत पसंद नज़रिया पेश करते हुए नज़र करते हैं। गालिब अपने अशार में एक ख़ास किस्म का मकसूफ़ाना कनूवियत के साथ साथ हकीकत पसंदी मकासद नज़र आते हैं। गालिब ने 19वीं सदी के नस्फ़ अव्वल के हिंदुस्तान में फ़न की सतह परवी का काम किया है, जो अमरीकी फ़लसफ़ी पियर्स ने साइंस व टेक्नोलॉजी के हक़ में अंजाम दिया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि गालिब इस फ़लसफ़ियाना फ़िक्र के दुआई थे जिसे पियर्स और मैथ्यू एरोनॉल्ड ने दो अजीम सकाफ़तियों के इम्तियाज़ से चार चांद लगाए। इन दानिश्वरों की सही मखसूस तहजीबी दायरों में घूमती हुई नज़र आती है ये सारी मिसालें। गालिब इस फ़िक्री निशुलसानिया के अहम रहनुमाओं में एक बुलंद पायर के शायर थे। सरसैद तहरीक का सिलसिला तौर पर गालिब से जाके मिलता जुलता है, और शायद इसीलिए अलीगढ़ तहरीक के दानिश्वरों ने गालिब शनासी बुनियादी किरदार अदा किए हैं। क्या है इत्तिफाक है कि गालिब ने कुलियात फ़ारसी की मसनवी नवल किशोर से 1925 में छपवाई। गालिब की एक लिहाज से उर्दू के मुनफरिद शायर है कि उन्होंने अपनी शायरी में पहली बार गुलशन ना आफरीदा की बात की। इस रिवायत की अपनी शायरी में पहली बार फ़रोग़ देने की कोशिश की है, जो सिर्फ मुस्लिमात को तस्लीम करती हैं, जिन्होंने रैशनैलिटी की बुनियाद पर मुस्तरद किया जा सकता था। यूँ तो इस दुनिया का कारोबार आलम असबाब के ज़वाबित के तहत हो रहा है, लेकिन जिस सबब का सच मुताला और मुशाहिदा पर पूरा न उतर सके, वो सच तस्लीम नहीं किया जा सकता। सच को सच होने के लिए
काबिल तस्दीक अंदाज में दुरुस्त भी होना चाहिए। यही बात मुमताज़ आलम प्रोफेसर अब्दुल हमीद कमाली भी लिखते हैं। यूँ मालूम होता है कि गालिब ज़हनी निज़ाम में साइंस ले रहे थे। वो मज़हब के बारे में 18वीं सदी के यूरोप में ज़ुहूर पजीर होने वाली तहरीकों से मुतासिर था और इसके कसाइद और मुनकफ़ती शायरी से कत्ता नज़र गालिब की गज़लिया शायरी में जिस जहन की कार फरमाई नज़र आती है, इसमें उनके अंग्रेज़ हल्का अहबाब और शागिर्दों से बराह रास्त यूरोपी जहन को पढ़ने के मौके पर भी दाखिल है। गालिब की शायरी में तशकीक के लिए इस दर्जे झुकाव मिलता है कि इसे इस्लामी फ़िक्र के पेश नज़र में भी देखा जाए तो गालिब की फ़िक्र को ह्यूम और लाक की फ़िक्र के नतीजे में पैदा होने वाली फ़िक्र न समझने के बावजूद इस्लाम की इस रिवायत से ज़रूर ताल्लुक़ हो सकता है, जिसको दांते फ़लसफ़िया यूनान के रीज़न की बेदखली के बाद यकीनी तौर से मिल जाते हैं। यहाँ तक मुमताज़ आलम साहब का लिखा हुआ है। ये गालिब की शायरी नवाई सरोज से ज़्यादा उनके ज़माने की तल्ख़ हक़ाइक़ पर तख्लीकी रुद अमल शायरी से हाँ, ये ज़रूर है कि ज़माना इनके जहन पर मुरतसिम होने वाली तख्लीक तमाशाले वाक़ियात से ज़्यादा इम्कानात के दायरे में आती है। इसलिए इनमें तारीख़ी सदाकतों का वफूर है और इसके साथ मुस्तक़बिल आफरीन की एक ऐसी तरफ है जो इन्हें एक गैर रिवायती शायर बना देती है। मेरा ख्याल ये है कि गालिब ही उर्दू के वो पहले शायर हैं जिनके फ़िक्र ने अपने समाज और समाजी रसूमात के पूरे नज़म शमसी पर एतराज़ात किए। यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोफेसर अली अहमद फ़ातिमी तशरीफ़ लाए हैं। फ़ातिमी साहब लिखते हैं कि गालिब कहते हैं कि लोग फ़लक की गर्दिश और मेरे हालजार की कहानी कहा करेंगे। मेरी बाड़ी को कव्वे और गधे खा गए, वो फलक जिसमें गिद्ध खाए, वो फलक जिसमें गिद्ध और कव्वे मंडरा रहे हों, जो इंसान के वजूद और हक़ को ही खा रहे हैं, ऐसे फलक में कायम मकाम क़याम के लायक नहीं है। गालिब ऐसे आसमान से एक अलग अलग आसमान फलक के खिलाफ फलक का तस्वुर करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अगर इनका गोया आसमान में होता तो यकीनन वहाँ की बुलंदी पर एक नए और अलग मंज़र की तहलीक कर सकते हैं। गालिब लिखते हैं, मंज़र एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकान अपना, जो बेगम अख्तर ने हमारे कानों तक भी पहुँचाया है। जिसने गालिब से मुलाकात नहीं की हो तो बेगम अख्तर का ये गाया हुआ गालिब का शेर है। गालिब बड़ी हद तक शाह वली उल्लाह की तहरीक के अकाबिर की फ़िक्र से मुतफ़िक थे, शायद इसलिए कि वो बखुदी तहरीक के मुकाबला में शाह वली उल्लाह तहरीक, खैर कुल और मजमा उल बरीन की स्पिरिट के हामी थे। हर चंद की मुफ्ती सदरुद्दीन आज़रुद्दीन इमाम बख्श सुबाही और मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी बखुदी तहरीक के ख़िलाफ़ थे, मगर मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी की इस बारे में कुछ बातें तहरीक में नहीं आती हैं। वैसे ये हकीकत है कि वो शाह वली उल्लाह की तहरीक को बखुदी तहरीक से अलहदा तस्वुर करते थे। इसकी वजह शाह वली उल्लाह की हकीकत पसंदी और उनका फ़लसफ़ा वहदतुल वजूद, इस तहरीक के मुख्तलिफ होने का एक और सबब मौलाना इस्माइल शहीद की तक़विया उल ईमान में अल तवसिल फ़ी उल अदा और शर्क उल असगर के मरतकब की तकफ़ीर से गुरेज़ हैं, और यही दो पहलू शेख अब्दुल वहाब की किताबुल तौहीद के मुनाकज़ में है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि गालिब एक तरफ मुसलमान के दोनों फ़िरक़ों में रवादारी कायम रखने की इन कोशिशों में जो शाह वली तहरीक ने अपने ख़ानदान बन नजफ़ खां की सितमरानियों के बावजूद एक वक्त ज़रूरी ख्याल की थी, मुनासिब ख्याल करते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने हल्का अहबाब में शामिल अंग्रेज़ अहबाब और शागिर्दों के ज़रिए मगरबी साइंस में टेक्नोलॉजी की शान में रतबुल लिसान रहते हैं। गालिब के चंद ऐसे अशार पेश आते हैं जो वहदतुल वजूद की शाह वली उल्लाह तावील के आइन मुताबिक थे।
गालिब फरमाते हैं, असले शहूद शाहिद व महशूद एक हैं, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। शर्म एक अदाए नाज है अपने ही से सही, मैं हैं कितने बेहिजाब कि मैं यूं हिजाब में। आराइश जमाल से फारिग नहीं हनूज, पेशे नज़र है आईना दाइम निकाब में। महरम नहीं है तो ही नवाहे राज का, या वरन जो हिजाब है पर्दा है साज का। कतरे में वजल दिखाई न दे और जुज़ में गुल, खेल लड़कों का हुआ दीदा बिना न हुआ। दिल हर कतरे है साज अना अलजरा, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। ये वो अशार थे जो मुफ्ती सादुद्दीन आज़ुर्दा इमाम बख्श सुभाई और मौलाना फजल खैराबादी को पसंद थे। गालिब की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने इस्लामी फ़िक्र की तरबियत पसंदी और मगरिब की साइंस दोस्त फ़िक्र के खमीर से अपनी रवायत शिकन शायरी के लिए मैदान हमवार किया। गालिब की शायरी में आज बल्कि आइंदा का शूर पूरा भरा हुआ है और यह रवैया उनके हम असरों में नापैद है। शायद इसीलिए गालिब के अशार के माने हर नस्ल और हर दौर हर ज़माने में मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती दिखाई आते हैं, जैसे ज़माना खुद को गालिब के अशार के कल्ब में डाल रहा हो। गालिब के शायरी के और कई पहलू हैं। गालिब जैसे हम कह चुके हैं कि गालिब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।